सो है गाइस, तो आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देखा ही होगा एंड दिस वीडियो इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, बिफोर स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप। हमेशा आप अगर किसी भी ड्राइविंग क्लास के लिए जा रहे हो तो बिफोर दे गेट यू ऑन द रोड, बिफोर दे गेट यू बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, आपको कुछ सेशंस, कुछ लेसन्स आपको पहले ऑफिस में बैठ के, उनके क्लासरूम्स में बैठ के कुछ सीखने पड़ते, बिकॉज दैट थियरी, बिकॉज दैट knowledge that they give you before you face the practical world is very important. So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, today I'm going to tell you 7 to 8 points that you need to know before becoming an entrepreneur, before starting your own business. And these are very basic but very important and every entrepreneur needs to know this before becoming an entrepreneur. काफ़ी सारे लोग वो entrepreneur होते हैं, right? Because they want to become an entrepreneur. And if you are an entrepreneur, if you are a young startup founder, if you are a new startup founder, तो आपको ये चीज़ें पता होना काफ़ी important है. So now let's start with the video. The first point that you need to know before becoming a startup founder, and that is studying the history of previous businesses that have failed in your industry. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम लोग काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स देखते हैं, केस स्टडीज के बारे में सुनते हैं जो आपकी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुए. एंड डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो उन्होंने अच्छे किए, द थिंग्स दैट दे हैव एक्सिक्यूटेड वेरी वेल एंड दैट कैन हेल्प यू इन योर जर्नी एज वेल. बट जस्ट रिमेंबर दैट फेलियर जो होते हैं वो आपको हमेशा सक्सेस से ज़्यादा सिखाते हैं. एंड देयरफॉर स्टडीइंग द फेलियर ऑफ द प्रीवियस बिजनेसेस दैट हैव एंटर्ड इनटू योर इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड देयरफॉर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इनकम्बेंट्स इज वेरी क्रिटिकल टू सी द डिस्टेंस दैट यू विल गो, राइट? तो आपको अगर पता है कि इस मार्केट में कौन कौन से इनकम्बेंट्स थे, कौन कौन से फेल्ड स्टोरीज थे, तो आपको पता है कि आप इस मार्केट में कितनी दूर तक जा सकते हो एंड इस मार्केट में ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज है जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस फेलियर्स and successes, right? Now moving on to the second point, and again that is very important, and that is prototype and learn from the first principles. ये काफ़ी basic है लेकिन काफ़ी important है. That is first start with an MVP, minimum viable product. प्रोटोटाइप करिए अपने आइडिया को. इट कैन बी ऐप का प्रोटोटाइप हो सकता है, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप हो सकता है, एनीथिंग बेसिक MVP that will just help you to go to the customer and ask them that whether is this product beneficial to you, is this product actually needed by you. And आप उस MVP के ऊपर, आप उस प्रोटोटाइप के ऊपर कस्टमर्स का फीडबैक लीजिए एंड देन using the first principles you then need to iterate those prototypes, those MVPs until you reach the final product market fit. तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यार मैं पहले एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ, राइट? There is nothing called perfect product. Companies like Microsoft, Apple, Google, they are still reiterating their products even after 30-40 years of operations, right? And successful operations. तो आपको start करना है एक small level से, that is by creating a prototype, by creating an MVP, go to the customers, validate it, get the feedback, reiterate it, iterate it, and then after some time you will actually reach a product that is the PMF, that is the product market fit, that will be your final one, right? Now the third important thing, and that is very important if you want to become an entrepreneur, and that is always pay attention to the people who are optimistic, who share your vision. Ignore the people who are pessimistic, right? It is very important as an entrepreneur to do this, right? काफ़ी सारे लोग आपको कहेंगे कि भाई क्या बना रहा है, इसका यूज़ नहीं है. हाँ, unless they are your customers. If your customers are saying that कि this is not useful, then you need to pay attention and you need to pivot your business. लेकिन आपके relatives हो, आपके सोसाइटी में लोग हो, आपके friends हो, आपके colleagues हो, don't pay attention to those people who are always pessimistic about your vision. And it is not actually their mistake, right? आपने जो सपना देखा है, आपका जो विजन है, वो उन लोगों ने नहीं देखा है. तो आप सोते जागते, शॉवर लेते, खाना खाते, घूमते फिरते, गाड़ी चलाते, जो सोच रहे हो, जो आप विजन देख रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो उन लोगों ने सोचा नहीं है, तो वो उनकी गलती नहीं है. सो यू हैव टू गिव देम दैट स्लाइट बेनिफिट ऑफ डाउट, राइट? तो उनको इग्नोर करिए, उनकी जो अच्छी चीज़ें वो लीजिए, बुरी चीज़ें उनको ड्रॉप कर दीजिए. डोंट गो बिहाइंड कन्विंसिंग देम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विथ ऑप्टिमिस्टिक पीपल. आपकी फैमिली हो, आपके टीम मेंबर्स हो, आपके मेंटर्स हो, it is very important to surround yourself with optimistic people because entrepreneurial journey is actually a very long journey, very tough journey, and it can be simpler if you have the right mindset, if you have the right focus, if you have the right people surrounding you, right? So very important. Now moving on to the fourth point, and that is be scrappy
एंड टेस्ट योर प्रोडक्ट बाय यूजिंग वेरियस मार्केटिंग टेक्निक्स। आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी सारे मार्केटिंग टेक्निक्स है, काफ़ी सारे टूल्स है जिससे आप एक स्क्रैपी बेसिक प्रोडक्ट बना के उसको डिजिटली मार्केट करके वैलिडेट कर सकते हो कि आपके आइडिया के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विस के लिए डिमांड है या नहीं। अगर आपने मेरा जो एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था आई थिंक मार्केट रिसर्च के ऊपर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि यू कैन जस्ट क्रिएट अ चीप लैंडिंग साइट। आप एक डोमेन ले लीजिए, उसका एक चीप लैंडिंग पेज बना दीजिए जिसके ऊपर आप अपने सर्विसेज एंड ऑल ऑफ those things that you plan to provide आप उसके ऊपर लिख रहे हैं एज अ बिजनेस, एंड आप नीचे है ना एक लिख दीजिए कि कॉन्टैक्ट अस, प्रोवाइड द ईमेल्स फॉर द न्यूज लेटर्स, राइट। सो राइट दिस एंड उसको आप डिजिटली मार्केट करिए, उसका आप SEO करिए, उसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करिए। आपके टारगेट कस्टमर्स जो है उन तक आप उनको पहुंचाइए FB एड से, गूगल एड से, राइट। एंड देन सी वेदर यू आर गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स और नॉट, वेदर द पीपल आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपने दिया है कि फिल द इन्फॉर्मेशन टू गेट द न्यूज लेटर्स, एंड दिस एक्चुअली प्रमोटिंग द स्क्रैपी प्रोडक्ट जो आपने लैंडिंग पेज किया है, जो भी आपने कुछ ऐड बनाया है, वेबसाइट बनाया है। अगर आपके उस चीज़ को अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर से, आपके टारगेट कस्टमर से, देन यू गेट द हिंट कि इस सर्विस के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, इस चीज़ के लिए बाहर डिमांड है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग विद अ फुल फ्लेज थिंग, एंड काफ़ी बार ना हमारे पास 3 to 4 आइडियाज़ होते हैं, राइट। एंड उसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है ना, इसका बेस्ट टेस्ट, इसका बेस्ट जो फिल्टर आपको मिलेगा वो है ऑडियंस से, ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे। तो अगर आपके पास भी 3 to 4 ऐसे आइडियाज़ है तो जस्ट डू वन थिंग, आज ना डोमेन्स ले लीजिए 2-3 एंड देन ना क्रिएट अ ब्रीफ स्क्रैपी लैंडिंग पेज, एक स्क्रैपी वेबसाइट बनाइए बेसिक, एंड उसको है ना एक कंपनी की तरह बनाइए। आपकी जो कंपनी, आप जो विजन कर रहे हो, सर्विसेज लिस्ट कीजिए, प्रोडक्ट्स लिस्ट कीजिए, एंड उसको है ना डिजिटल मार्केटिंग थ्रू प्रमोट कीजिए। एंड आफ्टर अ मंथ और सो सी कि आपके कौन से आइडिया को ना कितना रिस्पॉन्स आया है, एंड डिपेंडिंग अपॉन जो आपको मार्केट से रिस्पॉन्स आया है, यू विल गेट द हिंट, यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट वेदर कस्टमर्स आर रिस्पॉन्डिंग, वेदर दे आर शेयरिंग, वेदर दे आर एक्चुअली सब्सक्राइबिंग टू अ न्यूज़ लेटर और नॉट। ऐसा कोई न्यूज़ लेटर आप भेजने भी नहीं वाले भाई कभी। ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स के ऊपर ना नीचे कॉन्टैक्ट अस का इन्फॉर्मेशन होता है, जस्ट टू सी वेदर द कस्टमर्स आर पुटिंग इन देयर कॉन्फिडेंस। आपको वो बस वहाँ पे लिखना है। अगर आपके कस्टमर ने आपको ईमेल दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर आपको वैसे भी वेबसाइट के एनालिटिक्स से विजिटर्स एंड एंगेजमेंट तो आपको पता चल जाएगा, राइट। नाउ द फिफ्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट इज अंडरस्टैंडिंग टाइम, दैट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। नाउ सैम, टैम, टॉम मार्केट रिसर्च के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, वो आप जाके देख सकते हो अगर आपको ये फ्रेमवर्क नहीं पता है तो इसके अंदर जो टैम होता है दैट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इट इज़ द मार्केट जो आपके प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है, राइट, जिसको आप एड्रेस करने वाले हो। सो दीज आर द कस्टमर्स whom you are going to target। तो काफ़ी सारे लोग मैंने देखे, मुझे काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट करते, मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स में भी देखा होगा आपने भी, कहते कि सर मेरा विजन है कि ये मेरा $100 बिलियन का मार्केट है, लेकिन मुझे सिर्फ 1% पेनिट्रेट करना है, फिर भी $1 बिलियन का मेरा बिजनेस बन जाएगा। तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि भाई ये नज़रिया नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 1% पेनिट्रेट करना जितना आपको ईजी लग रहा है उतना ईजी नहीं होता। काफ़ी सारे बिजनेसेस 30, 40, 50 ईयर्स के बाद भी 0.01% पेनिट्रेट कर पाते हैं, राइट। इट इज़ नॉट ईजी। एंड अगर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो कि मुझे 1% ही करना है तो आप डेफिनेटली 0.1 ही करोगे। एंड दैट इज द रीजन, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू कि आपके टोटल एड्रेसेबल मार्केट का एक थरा एनालिसिस कीजिए। एंड अगर आपको कुछ रीजनेबल सेंस लग रहा है कि आप इतना कैप्चर कर सकते हो, इतना पेनिट्रेट कर सकते हो, इतना रेवेन्यू बना सकते हो, सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट विजन। अगर आपको लगता है कि आप 20% करोगे तो आप 20% बोलो, अगर आपको लगता है कि आप 10% करोगे तो 10% बोलो। जस्ट डोंट बी ऑन द सेफर साइड कि नहीं मुझे मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करना है, एरोगेंट साउंड नहीं करना है, तो आई विल से जस्ट 1%। आपको 20% लगता है, आप 20% बोलो, एंड ठीक है उसमें से फिर यू विल एंड अप कैप्चरिंग कितना, 2%, 3%, 4%, दैट इज इवन मोर देन द 1%, राइट, जो आप पिच कर रहे हो। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपने टैम को, आपके टोटल मार्केट साइज को अच्छे से एनालाइज कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि 0.1% ही आप कर सकते हो तो 0.1% ही आप कर सकते हो, लेकिन बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एनालिसिस, योर रिजल्ट्स एंड योर प्रेडिक्शन। So always believe that you have a good chance to append and conquer all of it with grit and cleverness, right? So it is very important that you always have that self-belief and confidence in your own prediction, in your own analysis, right? Now moving on to the sixth and the very important point, and that is self-awareness that an entrepreneur needs to have. अगर आपके पास एक कोई आइडिया है तो आपको ना उसके कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे कि जो आपको लगता है कि इन पॉइंट्स की वजह से ये बिजनेस बड़ा बनेगा। अगर आप लिस्ट डाउन नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अगर आप लिस्ट डाउन कर पा रहे हो तो आप पहले लिस्ट डाउन करिए एंड उन अजम्पशंस को रिसर्च के बेसिस पे, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एनालाइज करिए एंड फाइंड आउट दैट वेदर दीज आर द ट्रू रीजंस दैट विल मेक दिस आइडिया अ बिग अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड ये आपको ठीक है लगेगा, आपने 5 to 6 पॉइंट लिखे, आप उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स आप जस्टिफाई कर पा रहे हो, लेकिन दैट exercise will actually make you more honest rather than making you more overconfident। अगर आपके पास में 5 to 6 कुछ ऐसे ड्रीमी पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि सच में मतलब बिजनेस को बड़ा बनाएंगे, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकलिटी, तो आप हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 पॉइंट भी ऐसे जिनको आप जस्टिफाई कर सकते हो, जिनका जस्टिफिकेशन आपके पास है, जिसका एनालिसिस आपने किया है, जिसका मार्केट रिसर्च आपके पास है, तो you will actually become honest and more confident rather than being overconfident and lying about the opportunity, right? And आप ये किसी इन्वेस्टर को झूठ नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कल को इन्वेस्टर तो आपको पकड़ ही लेगा, राइट? दे आर वेरी क्लेवर, तो आप अपने आप को फूल कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो डू दिस थिंग, डू दिस एक्सरसाइज वेरी वेल बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। नाउ द लास्ट एंड द 7th पॉइंट ऑफ टूडेज वीडियो इज, एक स्टार्टअप फाउंडर को, एक एंटरप्रेन्योर को 24/7 365 डेज काम करना पड़ता है उसी विजन के पीछे, उसी प्रोडक्ट के पीछे, उस ही गोल को अचीव करने के लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैंने कंपनी रजिस्टर कर दी, मुझे 1 महीने बाद बोर हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर मेरा पैशन ही नहीं था तो मैंने उसको ड्रॉप किया, मैं दूसरी कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप कोई भी कंपनी कभी बड़ी नहीं कर पाओगे। एंड ये हो जाता है जब आप पैशन को नहीं फॉलो करते, आप ट्रेंड को फॉलो करते हो, आप लोगों को देख के कुछ बना रहे हो, राइट? तो अगर आपका वो आइडिया, वो बिजनेस अगर पैशन नहीं है तो आप उसको ज़्यादा दिन परस्यू नहीं कर पाओगे, यू विल बर्न आउट, राइट? एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एन आइडिया दैट इज़ एक्चुअली पैशनेट टू यू, दैट एक्चुअली मैटर्स टू यू, वो मॉरल जो है बिजनेस का, दैट एक्चुअली अलाइंस विथ योर ओन विजन एंड मिशन, तो यू विल बी ऑलवेज सो एक्साइटेड कि आप कभी थकोगे नहीं, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। एंड मुझे भी 2-3 आइडियाज़ ऐसे लगे थे कि मतलब लोग कर रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी ह्यूज मार्केट है, तो वो कर लेते, लेकिन ना मैं सीरियसली बता रहा हूँ 2-3 महीने बाद ना आप पूरे बर्नआउट हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, रिसर्च करने का मन नहीं करेगा, राइट? लेकिन आफ्टर दैट आई हैव लर्नड कि अभी मैं ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ जो मुझे सोने नहीं देता रात को। देयर इज सो मच ऑफ एक्साइटमेंट, देयर इज सो मच ऑफ पैशन दैट आई एम पुटिंग इन while working, while researching, while meeting the customers, while developing the product, while marketing the product, that I know for sure कि अगर ये आइडिया 1-2-3 महीने बाद भी नहीं चला फिर भी मैं इसे परस्यू कर सकता हूँ एंड बड़ा बना सकता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट पैशन एंड देयरफॉर आई विल हैव दैट पेशेंस एंड परसिवियरेंस टू मेक दिस बिग। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पैशन, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। एंड अगर पैशन ही नहीं है, द फर्स्ट पॉइंट इज पैशन, अगर पैशन ही नहीं है तो आप पेशेंट भी नहीं रहोगे, आप परसिवियरेंस भी नहीं दिखाओगे। सो बी पैशनेट अबाउट द आइडिया दैट यू आर वर्किंग ऑन, बिकॉज इट इज़ अ 24/7 365 डेज जर्नी जो आपको साल दर साल करनी पड़ेगी। So guys, that's it for today's video। ये 7 points है that you need to know before becoming an entrepreneur, right? And अगर आप एक entrepreneur हो, अगर आपको एक startup founder बनना है तो ये 7 चीज़ें खुद एनालाइज करिए, खुद को एनालाइज करिए कि आप ये कर रहे हो या नहीं। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू कर दीजिए करना, राइट? इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज yesterday and the next best time to start is today, right? So पोस्टपोन मत करिए, वो एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनिए एंड स्टार्ट दीज एक्सरसाइजेस एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है ऑलरेडी जो स्टार्टअप के लेसन्स, बिजनेस के फ्रेमवर्क्स, के स्टडीज़ के ऊपर आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। भाई क्या लर्न किया यार, यूट्यूब के लिए करना पड़ता है लेकिन एंड में। सो गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।